members recorded their votes in favor of the resolution, and the resolution is passed. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. قومی اسمبلی کا وزیر اعظم عمران خان پر بھرپور اعتماد کا اظہار، 178 ارکان نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے صدر مملکت کو بذریعہ خط آگاہ کر دیا۔ کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالو، سارے چور مل کے ون پوائنٹ ایجنڈا ان کا، یہ NRO نہیں دے گا۔ معاشرے کی اخلاقیات ایسی ہونی چاہیے کہ جو کرپٹ آدمی ہو شکل نہ دکھا سکے پبلک کے اندر۔ ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، آخری گیند تک کرپشن اور بدعنوانی کے خلاف لڑتا رہوں گا، چوروں اور ڈاکوؤں کو کسی صورت NRO نہیں دوں گا۔ کرپٹ افراد کو سزا دلانے کے لیے جو تعاون درکار ہے حکومت فراہم کرے گی، وزیر اعظم عمران خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ حکومتی اور اتحادی ارکان اسمبلی کی اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے پر وزیر اعظم کو مبارکباد، جمہوریت کے تسلسل کے لیے ساتھ ہیں، عوامی توقعات پر پورا اترتے ہوئے ہمیں مل کر پارلیمنٹ مزید مضبوط کرنا ہے، ارکان اسمبلی کا اظہار خیال۔ اپوزیشن کے برے ارادے زمین بوس، نوٹ کو عزت دو کا منہ ایک مرتبہ پھر کالا۔ عمران خان نے پھر ثابت کیا کہ وہ ایک سچے، کھرے اور بہادر قائد ہیں جو اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے حتمی اہداف کے حصول تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز۔ وزیر اعظم عمران خان نے اعلیٰ اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعتماد کا ووٹ دینے کا فیصلہ کیا اور سرخرو ہوئے۔ اتحادی جماعتوں نے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کرنے کی تائید کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو۔ تحریک انصاف نے یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی درخواست دائر کر دی۔ علی حیدر گیلانی ارکان اسمبلی کو رشوت دیتے رہے، مریم نواز نے تقریر میں ٹکٹ دینے کے وعدے کا اعتراف کیا۔ الیکشن کمیشن یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرے، PTI رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو۔ استحصالی طبقے کی لوٹ مار کی وجہ سے معاشرتی فرق بڑھتا گیا، ایک طرف کروڑوں کے قرضے معاف ہوئے تو دوسری جانب غربت بڑھتی گئی۔ پسماندہ طبقے کی بحالی اور وسائل کی منصفانہ تقسیم وقت کی ضرورت ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ سیکورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے بویا اور دوسالی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، کالعدم تحریک طالبان کے 3 کمانڈروں سمیت 8 دہشت گرد ہلاک، بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں، مقامی افراد کے قتل اور دیگر تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ لوگوں کے جذبات کو دبایا تو نہیں جا سکتا، لوگوں کے جو احساسات ہیں ان کو طاقت کے بل پہ یا گھروں میں بند کر کے ہمارا موقف جو ہے جو کہ ایک اصولی موقف ہے اور جو کہ جس کی پوری دنیا آج یہ تائید کر رہی ہے کہ بھائی بات چیت ہونی چاہیے، مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ غیر قانونی بھارتی اقدامات سے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے، مسئلہ کشمیر حل ہو کر رہے گا۔ حریت قیادت کا مسئلہ کشمیر پر اصولی موقف ہے جس کی پوری دنیا حمایت کر رہی ہے۔ نظر بند چیئرمین حریت فورم میر وائز عمر فاروق کا BBC کو انٹرویو۔ بھارتی کسانوں کے ہاتھوں مودی حکومت کی پریشانی میں اضافہ، کسانوں نے مظاہروں کا نیا پلان تشکیل دے دیا۔ نئی دلی میں ایکسپریس وے بند، دارالحکومت دلی کا ملک کے باقی حصوں سے رابطہ کٹ گیا۔ 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پورے بھارت میں خواتین تحریک چلائیں گے۔
ملک میں کورونا سے مزید 38 افراد جاں بحق، 1714 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ دنیا بھر میں وبا سے ہلاکتوں کی تعداد 26 لاکھ کے قریب۔ غریباں دے بچے ٹی وی ہوں نا میرا گھر جو ویڈیو گیما کھیل رہے ٹی وی یہاں کو ٹی وی ہوں نہیں رات کو چند نال ہی کھیلتے رہتے رات کو نکے نو کہ اور میں چند اتنے لے کے جا ویکھی انہیں۔ جو بھی کردار کیا خوب نبھایا، چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے کامیڈی کنگ امان اللہ کو بچھڑے 1 سال بیت گیا۔ فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ اور اسلام آباد میں ڈیوس کپ ورلڈ گروپ 1 ٹائی، جاپان نے پاکستان کو 4-0 سے ہرا کر 2022 کے کوالیفائرز میں جگہ بنا لی۔ سنگلز مقابلے جیتنے کے بعد جاپان نے ڈبلز اور پہلا ریورس سنگلز سے اپنے نام کیا۔ ایونٹ پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دکھایا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں صدف علی خان، اور اسپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ناظرین خبروں کی تفصیل شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ منزل بدلی، بدلا رستہ، بدلا خیبر پختونخوا۔ صوبے کی 100% آبادی کے لیے 100% مفت علاج۔ صحت سہولت پروگرام سے ہسپتالوں میں داخلے کی شرح میں 270% تک اضافہ۔ دور دراز وادیوں اور آبادیوں کو خوشحالی کی جاری سفر سے جوڑنے کے لیے سوات ایکسپریس وے پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد چکدرا سے فتح پور سوات تک 81 کلومیٹر طویل 4 لین سوات ایکسپریس وے کا آغاز۔ صوبے میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کو ترقی کے عمل میں شامل کرنے کے لیے 10 سالہ ترقیاتی منصوبہ۔ پہلے مرحلے میں 142 ارب روپے سے 127 نئے منصوبوں کی 3 سالوں میں تیز در تکمیل، اور ہر وہ سہولت جو صوبے کے دیگر علاقوں میں موجود ہے۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ، حکومت خیبر پختونخوا۔ قومی اسمبلی نے وزیر اعظم عمران خان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آخری گیند تک کرپشن اور بدعنوانی کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ چوروں اور ڈاکوؤں کو کسی صورت NRO نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تفصیل ہارون الہی ٹور سے۔ قومی اسمبلی سے بھرپور اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پر اعتماد وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک کرپشن اور ناانصافی کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیں اعلیٰ ترین اخلاقی معیار اپنانے ہوں گے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا۔ 30 سال سے چوری کر رہی ہیں پیسہ۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالو، سارے چور مل کے 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کا۔ یہ NRO نہیں دے گا۔ معاشرے کی اخلاقیات ایسی ہونی چاہیے کہ جو کرپٹ آدمی ہو شکل نہ دکھا سکے پبلک کے اندر۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے، اپنی آنے والی جنریشنز کو بچانا ہے، اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانا ہے، سارے ملک کو مل کے لڑنا پڑے گا۔ مجھے ساری قوم کی اس میں مدد کی ضرورت ہے۔ میں اپنی ساری زندگی کوشش کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میں تو اپنی پارٹی کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میری پارٹی ساری بھی چھوڑ دے میں اکیلا بھی ان کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن تھا، آخری گیند تک لڑوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ الیکشن شفافیت کے نعرے لگانے والوں نے ووٹ کی بولیاں لگائیں، الیکشن کمیشن اس پر اداروں سے بریفنگ لے۔ میں نے کیوں یہ آج ووٹ آف کانفیڈنس لی ہے، اس کا کیا پیغام دیا دنیا میں؟ سارے لوگوں کے سامنے اوپن ہارس ٹریڈنگ، لوگوں کو راتوں کو کال کر رہے ہیں کہ جی 2 کروڑ سے ریٹ شروع ہوگا، ہم اب آپ کو آگے پیسے دیں گے۔ الیکشن کمیشن کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ آنےسٹ ہو، فری اور فیئر الیکشن ہو۔ میں صرف الیکشن کمیشن کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی ایجنسی سے صرف ایک سیکرٹ بریفنگ لیں، ان کو اندازہ ہوگا کتنا پیسہ چلا اس الیکشن کے اندر۔ دونوں پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا ہوا ہے کہ جی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، ایک دم ادھر سے بھاگ کے اور کہتے نہیں جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے۔
میں نے تب کہہ دیا کہ خفیہ بیلٹ کا ایک مقصد سارے مل کے کوشش کریں گے کہ حفیظ شیخ کو ہرائیں اور وہ جو آدمی جیتا ہے پاکستان کا کرپٹ ترین آدمی یوسف رضا کے آپ صرف ایسٹس دیکھ لیں پرائم منسٹر بننے سے پہلے تھے اور اس کے بعد کیا ایسٹس ہے. کوئی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا چلے گا انہوں نے اس سے کیا کیا اپنے زمانے میں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم مشکل دور سے نکل آئے ہیں. غربت اور مہنگائی کا خاتمہ، میگا پروجیکٹس پر تیز ترین عمل درآمد اور سماجی تحفظ کے منصوبوں کو آگے بڑھانا ان کی ترجیح ہے. پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. وقت آ گیا ہے کہ آنے والی جنریشنز کو ہم نے بچانا ہے. مشکل وقت سے نکل کے اب ہم ایک سٹیبل اور آگے بڑھنے کے سٹیج پہ آ گئے کہ سب سے زیادہ اس وقت میری حکومت ایک ہی چیز پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کریں. کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو سارا نچلا طبقہ ہے ان کو سبسڈائز کریں. ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کوئی بھوکا نہ سوئے. ہیلتھ کارڈ پنجاب کے اندر اور پختونخوا میں خاندانوں کو کور کر لیا ہیلتھ انشورنس سے. یہ بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا. کسانوں کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں. دولت کے اندر اضافہ کریں. اس کے لیے ہم نے میگا پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں. ایک ہے راوی سٹی لاہور، دوسرا اس وقت ایک والٹن کے اوپر ایک ہم بزنس سینٹر بنانے لگے ہیں لاہور کا، وہ بہت میگا پروجیکٹ ہے. اور پھر تیسرا بنڈل آئلینڈ 50 سال کے بعد 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں، بادشاہ ڈیم اور مومن ڈیم بنا رہے ہیں. یہ انشاءاللہ ان کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. اعتماد کے اظہار پر اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں بحیثیت قوم تباہی کے راستے سے بچ کر عظمت کے راستے پر چلنا ہوگا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ترقی کی منازل مشکلات کے راستوں سے گزر کر ہی حاصل کی جاتی ہیں اور وہ ملک کی ترقی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں. ہارون الہی طور، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. قومی اسمبلی نے وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی. 178 ارکان نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیا. اسپیکر اسد کیسر نے صدر ڈاکٹر عارف الوی کو بذریعہ خط وزیر اعظم کی جانب سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے. اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں رانا شہزاد السلام. وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں ہوا. اجلاس کی کارروائی کے آغاز ہی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم پر اعتماد کی قرارداد پیش کی. اسپیکر اسد کیسر نے ایوان میں اعتماد کی قرارداد کے حوالے سے ووٹنگ کے عمل سے ارکان کو آگاہ کیا. ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے 5 منٹ تک گھنٹیاں بجائی گئیں تاکہ تمام ارکان ایوان میں پہنچ جائیں، جس کے بعد ایوان کے تمام داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے گئے. اعتماد کی قرارداد کے حق میں جو ارکان تھے وہ اسپیکر کی دائیں جانب لابی میں جا کر اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرتے رہے. ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد 2 منٹ تک دوبارہ گھنٹیاں بجائی گئیں تاکہ تمام ارکان لابیوں سے واپس ایوان میں آ جائیں، جس کے بعد اسپیکر اسد کیسر نے نتائج کا اعلان کیا. 178 members recorded their votes in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. قرارداد منظور ہونے پر ارکان قومی اسمبلی نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر ڈسک بجائے اور بھرپور جوش و خروش کا اظہار کیا. اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی اور اتحادی اراکین کی نشستوں پر جا کر ان کا شکریہ ادا کیا. کراچی سے تحریک انصاف کے منتخب رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت نے ایوان میں نعت پڑھی. اپنے عمران کو تنہا نہ چھوڑے، آ رہا ہوں میں آقا مدینہ، اپنے عمران کو تنہا نہ چھوڑے. حکومتی اتحادی جماعت MQM کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مل کر جاگیردارانہ جمہوریت کی بجائے حقیقی جمہوریت اور فلاحی ریاست بنائیں گے. آپ کے اتحادی اس موقع پہ بھی ہر مشکل وقت میں آپ کو اپنے ساتھ کھڑے نظر آئے. آپ قوم کو یہ اعتماد اور اعتبار دیں کہ تبدیلی محض آپ کا نعرہ یا وعدہ نہیں ہے بلکہ آپ کا ارادہ ہے. GDA کی رہنما وفاقی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا کہ جب بھی جمہوریت کی مضبوطی کی بات آئے گی تو اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اور اس وقت اس ملک کو کون سے چیلنجز ہیں. جب سے آپ حکومت میں آئے، اکانومی بہت بڑا چیلنج، لائن آف کنٹرول کی وائیولیشن جو بارڈر کی سچویشنز تھی بہت بڑا چیلنج، پلوامہ انسیڈنٹ ہوا وہ بہت بڑا چیلنج تھا، FATF
बहुत बड़ा चैलेंज। उसके बाद कोविड। वैसे मैं कोविड की मुबारकबाद भी हुकूमत को देना चाहूंगी कि जिस तरह उन्होंने इस इशू को हैंडल किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने विरसे में मिलने वाली तबाहाल मईशत को दोबारा अपने पांव पर खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि अब गुर्बत और महंगाई के खिलाफ सारी तवज्जो मरकूज होनी चाहिए। आपको एक नई सियासी जिंदगी दी है, गरीब के लिए निकला है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट कभी किसी का नहीं होता। ये मेरे कान पक गए हैं ये सुन के, ये जागीरदार कभी किसी का नहीं होता। इससे पहले जब वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान में पहुंचे तो अरकान ने डस्क बजाकर उनका खैर मकदम किया। इजलास में मेहमानों की गैलरियों में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सैनेटर शिबली फराज, वफाकी वज़ीर सैनेटर आज़म खान स्वाति, सेनेट में कायद ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम, सैनेटर फैसल जावेद खान, मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और दूसरी अहम शख्सियात मौजूद थीं। एतमाद के वोट के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की पुरएतमाद तकरीर इस बात की अक्कासी करती है कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हुकूमती पॉलिसी जारी रखी जाएगी। राना शहजादुल पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। नाज़रीन, खबरों के ऊपर और भी नजर डालेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। जी बच्चों, कर लिया होमवर्क? जी। जरा मुझे स्कूल की डायरी तो दिखाएं। हल्का बस्ता एक्ट, क्या अब रोजाना सारी किताबें स्कूल नहीं लेके जानी? टीचर ने कहा है कि इस डायरी के मुताबिक किताबें लेके आनी है। वाह भाई, यानी अब हर बस्ता होगा हल्का बस्ता। हल्का बस्ता एक्ट 2020 खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का पहला सूबा जहां है अब हर जमात के बस्ते का वजन मुकर्रर। हुकूमत का तालीम दोस्त इक़दाम। हल्का बस्ता कामयाबी का रास्ता। महकमा एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से घर घर एहसास डिजिटल सर्वे जारी है, जिसके नतीजे में 70 लाख मुस्तहिक खानदानों को एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। सर्वे नुमाइंदे के साथ ताउन करें और इन्हें अपने कौमी शनाख्ती कार्ड समेत अपने घराने की दुरुस्त मालूमात फराहम करें। मुस्तहिक घरानों के जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड नहीं होंगे, इन्हें 8171 से शनाख्ती कार्ड बनवाने का पैगाम आएगा और अहल अफराद को 12,000 की पहली किस्त की वसूली का पैगाम आएगा। रकम हबीब बैंक और बैंक अल फलाह के मुकर्रर करता अदायगी मराकज से वसूल करें। एहसास के तमाम पैगामात सिर्फ 8171 से ही आते हैं। याद रहे, एहसास के किसी भी प्रोग्राम में शमूलियत की कोई फीस नहीं। मजीद मालूमात के लिए 0800 26477 पर रुजू करें। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और एतमाद का वोट हासिल करने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात करने वालों में खालिद मकबूल सिद्दीकी, गौस बख्श मेहर, तारिक बशीर चीमा, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, नवाब शाह जैन बुख्ती और खालिद खान मक्सी शामिल थे। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, शफ़क़त महमूद, परवेज खटक, असद उमर और सैयद अमीनुल हक भी मुलाकात में मौजूद थे। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को मुस्तक़बिल में भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि अल्लाह ताला के हुजूर शुक्रगुजार हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान फतहमंद हुए। तमाम अरकान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि नोट को इज्जत दो का मुंह एक मरतबा फिर काला और अपोजिशन के बुरे इरादे जमीन बोस हुए। इमरान खान ने फिर साबित किया वो एक सच्चे, खरे और बहादुर कायद हैं जो उसूलों पर समझौता नहीं करते। शिबली फराज ने कहा कि कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवामी मसाइल के हल के लिए हतमी अहदाफ के हुसूल तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इमरान खान ने आला अखलाकी इक़दार का मुजाहिरा करते हुए एतमाद का वोट लेने का फैसला किया और सुरखरू हुए। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी ने हमारे खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया।
آج آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ آج ان کو جب پہلی دفعہ 2018 میں منتخب ہوئے تھے اس سے ووٹ زیادہ پڑے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر یوسف رضا گیلانی اور ان کی پارٹی خرید و فروخت نہ کرتی جی تو وہ منتخب نہ ہوتے. ہمارا جو بیانیہ تھا وہ مزید تقویت پکڑ گیا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ سینٹ کے چیئرمین شپ اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے. اتحادی جماعتوں نے صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کرنے کے فیصلے کی تائید کی ہے. ارکان اسمبلی نے وزیر اعظم کے اعتماد کا ووٹ لینے کو جرأت مندانہ اقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی قیادت میں میرٹ اور شفافیت کو فروغ ملے گا. مزید تفصیلات بتائیں گے محمد نذر عباس. وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کے لیے ہونے والے قومی اسمبلی اجلاس میں خاصی گہما گہمی رہی. ارکان اسمبلی کی آمد کا سلسلہ صبح سے ہی شروع ہو گیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ اور اتحادی جماعتوں کے ارکان خاصے پر اعتماد نظر آئے. یہ بڑی کامیابی ہے. اس سے ایک سیاسی استحکام واپس آئے گا پاکستان کے اندر. اس سے پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا کیونکہ سیاسی استحکام اہم ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے. جہاں خفیہ ووٹ ہوگا وہاں پر زمینوں کے سوداگر آپ کو آگے آگے نظر آئیں گے. کیونکہ آج اعتماد کا ووٹ تھا, یہ خفیہ ووٹ نہیں تھا, کھلے عام لوگوں نے آگے ووٹ دینا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ چوروں کی طرح دم دبا کر ساری اپوزیشن بھاگ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دلیرانہ فیصلہ عمران خان کر سکتا ہے کیونکہ عمران خان نے نہ چوری کی ہوئی ہے, نہ اس کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہے, نہ اس کے بچوں کے کاروبار وہاں پر ہیں, نہ اس کی جائیدادیں وہاں پر ہیں. اس کو کرسی سے پیار نہیں ہے, اس کو پاکستان کی عوام سے پیار ہے. آج آپ کو ہم نے میسج دیا کہ آپ بھاگ گئے لیکن وزیر اعظم کو ایوان کا کانفیڈنس حاصل ہے. پاکستان کے منتخب وزیر اعظم نے عوام کے وزیر اعظم نے 178 ووٹ لیے ہیں. پچھلی دفعہ سے 2 ووٹ زیادہ لیے ہیں. آپ کے خلاف جو کرپشن کے خلاف جو جنگ تھی, احتساب کے لیے جو جنگ تھی, اس کو جاری رکھیں گے. آج جتنے بھی پارلیمنٹیرینز آئے جو اپنے اپنے علاقوں سے 80-80 ہزار 1-1 لاکھ ووٹ لے کر آتے ہیں, عوام کے پلس پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے. آج ان کا پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ثابت کرتا ہے کہ وہ بیسیکلی پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے. ارکان قومی اسمبلی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ملک میں خوشحالی اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. 2 نظریے موجود تھے. ایک نظریہ کرپشن تھا اور دوسرا نظریہ ایمانداری, یعنی کہ جس پہ پاکستان کی بنیاد یا نئے پاکستان کی بنیاد ہم نے لگائی تھی, اور آج وہ نظریہ ایمانداری جیت گیا. پورے ایوان نے جو ہے وہ پوری اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے پرائم منسٹر کے ساتھ اعتماد کا ووٹ دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں بھی پورے مستعدی کے ساتھ تمام جو ہمارے ایلائز ہیں وہ بھی پورے ساتھ کھڑے ہیں. ایک خوشبودار ہوا کا جھونکا, ایک خوبصورت احساس, ایک طاقت کی دوبارہ ایک آپ کو رسائی ہوئی ہے کہ آپ نے محسوس کیا کہ ہم سب ایک ہیں. وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد اس بات کا مظہر ہے کہ اپوزیشن کے ہتھ کنڈوں کے باوجود عوامی مسائل کے حل کے لیے ایوان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں متحد ہے. محمد نذر عباس, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ اشرافیہ کی کرپشن کی وجہ سے ملک غریب تر ہوتا چلا گیا. استحصالی طبقے کے خلاف جنگ طویل ہے, تاہم اسے منطقی انجام تک پہنچنا ہوگا. لاہور میں اخوت فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشرتی اصلاح اور ترقی کے لیے عدل و انصاف اور مبنی ریاست کلیدی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. صدر مملکت نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے. لوگ خیرات کرتے بھی ہیں اور جن کو آپ قرض دیتے ہیں وہ بھی مزید قرض آپ کو بھی دیتے ہیں, تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ ہے میرا پاکستان. اور اس کے برعکس جب میں دیکھتا ہوں کہ اشرافیہ کے اندر بڑی تکلیف ہے مجھ کو کہ وہاں اربوں کے قرضے معاف بھی ہوئے اور اربوں کے قرضے چوری بھی ہوئے اور اربوں کی چوریاں ہوئی, تو آپ کبھی اس اصلی پاکستان سے جب رشتہ جوڑیں گے تو آپ کو اور مجھ کو احساس ہوگا کہ یہ ہے بڑی طاقتور قوم, مگر ایک انداز سے زوال کی وجہ سے اس کے اوپر وہ استحصالیوں نے, اشرافیہ نے اور کرپٹ لوگوں نے اس کے اوپر ایسا قبضہ کیا کہ میرا غریب تر ہوتا چلا گیا اور لوگ پیسہ ملک میں بھی اور لوٹ کر بھی اور باہر بھی لے گئے. اور یہ بڑی لمبی جنگ چلے گی. یہ جنگ نئی نہیں ہے, پرانی ہے. یہ جنگ تاریخ میں ہمیشہ چلی.
सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाकों बोया और दोसाली में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक इस कार्रवाई में कल अदम तहरीक तालिबान के 3 कमांडरों समेत 8 दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वालों में तूफान ग्रुप का कमांडर अब्दुल अनीर उर्फ आदिल, TTP तारिक ग्रुप का कमांडर जुनेद उर्फ जामिद और TTP सादिक नूर ग्रुप का कमांडर खालिद शादीन उर्फ विहान शामिल हैं। ऑपरेशन में दहशतगर्दों की पनाहगाह से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दहशतगर्द, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों, मकामी अफराद के कत्ल, IED धमाकों और दीगर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। हलाक होने वाले दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दों को भर्ती करने में भी मुलव्विस थे। वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद का वोट हासिल करने की खुशी में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, इंसाफ यूथ फेडरेशन समेत तहरीक इंसाफ से वाबस्ता तंजीमों ने रैली निकाली। तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। इस्लामाबाद डी चौक में निकाली गई रैली में सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की, जिन्होंने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर वजीर आजम इमरान खान की हिमायत में नारे दर्ज थे। इस मौके पर रैली के शुरका से खिताब करते हुए वजीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि इमरान खान वो वाहिद रहनुमा हैं जिन्होंने अपनी सियासत के आगाज से ही नौजवान नस्ल को अहमियत दी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने हमेशा नौजवानों को जिंदगी के तमाम शोबों में मजबूत बनाने की बात की। आज जो हम अपनी सॉलिडारिटी दिखाने आए हैं, ये एक बार फिर इमरान खान को अल्लाह ने इज्जत दी, जबकि नवाज शरीफ, जरदारी, ये उन सारी कुव्वतों का की सरबराही कर रहे हैं जिन्होंने के इस मुल्क में पैसे के को खुदा बनाया और हमेशा पैसे के जोर घुमंड पर इस मुल्क की सारी जो इक़्तिदार थी उनको तार-तार किया और इस मुल्क के मुआशी, सियासी, इखलाकी बुनियादों को खोखला किया। रैली के शुरका का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान मुल्क व कौम की तरक्की, खुशहाली और कानून की हुक्मरानी के ख्वाहां हैं। एतमाद का वोट हासिल करके वो मजीद मजबूत हो गए हैं। आज हक की जीत हो गई है और आज सच की फतह हुई है। हम अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ हैं। इमरान खान के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इमरान खान का जो नजरिया था पाकिस्तान के अंदर करप्शन के खिलाफ, वो आज पूरे पाकिस्तान की कौम की आवाज बन गया है। पार्लियामेंट के अंदर खान साहब ने एक पाकिस्तान की तारीख में एक इनकलाबी कदम उठाया है और उन लुटेरों, चोरों और नोटों के पुजारियों को बेनकाब किया। इससे पहले वजीर आजम के एतमाद का वोट हासिल करने की खबर सुनकर रैली के शुरका ने और वजीर आजम की हिमायत में फलक शगाफ नारे लगाए। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि तरक्याती अमल के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत अहम है। वजीर आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट मिलने के बाद माशी शोबे में पॉलिसियों का तसल्सल बरकरार रहेगा। ताजिर बरादरी की आराज़ के बारे में देखते हैं कराची से जीशान अहमद की ये रिपोर्ट। वजीर आजम इमरान खान के कौमी असम्बली में भारी अक्सरियत से एतमाद का वोट हासिल करने पर सरमायाकार और ताजिर बिरादरी न सिर्फ खुश है बल्कि हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के तसलसल को बरकरार रखने में ताउन के लिए भी तैयार है। कौमी असम्बली में वजीर आजम की तकरीर में मुल्की बरामदात में इजाफा और मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करने के अज़म का अयादा ताजिर बिरादरी के लिए एक नवीद से कम नहीं। मौजूदा हुकूमत के दौर में 17 साल बाद पहली बार मुसलसल 5 माह से मुल्की करंट अकाउंट सरप्लस है और समंदर पार पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मुल्क भिजवाई। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के फौरन बाद मुल्की एक्सपोर्ट की बात करना ही ये वो प्रायोरिटीज हैं जो नजर आती हैं कि वजीर आजम की तरजीहात में हैं। दोबारा उसकी सनतें खुल गई हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। रिमिटेंसेज पर तो मैं गैर मुल्की पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने $2 बिलियन मंथली माहाना का एक एवरेज रखा है। ताजिर और सनतकारों का यह भी मौकिफ है कि कोरोना वायरस के वबा के दौरान वजीर आजम इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की वजह से कोरोना वबा की इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का कामयाबी से मुकाबला किया गया। एक बिगाड़ बहुत अरसे से हुआ है, वो रातों रात सही तो नहीं हो सकता ना, उसको ग्रेजुअली ठीक होता है। तो वो सिलसिले में लगे, कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और उम्मीद है कि जो उनकी एक विजन है उस हिसाब से इंशाल्लाह उम्मीद है कि बिजनेस कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। दुनिया में इस वक्त हमारी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। अगर हमें हौसला अफजा पॉलिसियाँ मिलेंगी और अगर हुकूमत का सपोर्ट इसमें हमें मिलेगा तो जो एक्सपोर्ट माशाल्लाह जिस तरह ग्रोथ बढ़ रही है, हमें उम्मीद है कि हम इसमें मजीद जो है इसमें इजाफा करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कराची को जदीद और मॉडल शहर बनाने और तरक्याती स्कीमों की बरवक्त तकमील के अज़म से माशी सरगर्मियों में बेपनाह इजाफा होगा।
ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाबी पर PTI सिंध के रहनुमाओं और कारकुनान ने खुशी का इजहार किया। तफसील बता रहे हैं सुहेल जमानी। इंसाफ हाउस कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमाओं और अरकान सिंध असम्बली ने कौमी असम्बली की कार्रवाई बराह रास्त देखी। वजीर आजम इमरान खान को एतमाद का वोट मिलने के बाद PTI के रहनुमाओं और कारकुनों ने खुशी से नारे बुलंद किए और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर अरकान असम्बली और कारकुनों का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान को एतमाद का वोट मिलना खुशाइंद है, इससे जमहूरियत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान की तारीख का एक यादगार दिन था जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने आप को पेश किया अपनी पार्लियामेंट के आगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीता माशाल्लाह से। इमरान खान तब्दीली का प्रोग्राम लेकर आए, करप्ट को पकड़ने का प्रोग्राम लेकर आए। आज है जीत हमारे वजीर आजम की, पता चल रहा है आज वो और ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने वोट उन्होंने अपनी उस वक्त 2018 में लिए थे, आज 2021 में उससे ज्यादा लिए हैं। अवाम को अब पता चल रहा है कि ईमानदार हाई मॉरल ग्राउंड का प्राइम मिनिस्टर कौन है। जिंदगी के दूसरे शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने उम्मीद जाहिर की है कि मौजूदा हुकूमत पहले से ज्यादा अवामी मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दाम करेगी। अब एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। मुबारकबाद देता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी वज़रा और उनके कारकुनों के। ये एक अच्छा फैसला था और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ वजीर आजम। आज वजीर आजम ने खुद ये बात साबित किया कि वो जमहूरी सोच के मालिक हैं और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। ये जमहूरियत की, वजीर आजम की, पाकिस्तानी अवाम की कामयाबी है। कौमी असम्बली से पहले से ज्यादा तादाद में वजीर आजम को एतमाद का वोट मिलना इस बात का मजहर है कि पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद करते हैं। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। यूसुफ रजा गिलानी के बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी गई है। ये दरखास्त तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली फारूक हबीब, मलिका बुखारी और कमल शोज़ ने दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अली हैदर गिलानी अरकान असम्बली को रिश्वत देते रहे, जबकि मरियम नवाज ने तकरीर में टिकट देने के वादे का एतराफ़ किया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि मरियम नवाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और वीडियो स्कैंडल पर कार्रवाई मुकम्मल होने तक यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोका जाए। वो PDM जब खुफिया वोटिंग होती है तो ये नोटों का कमाल दिखाते हुए लोगों के ज़मीरों के सौदे करते हैं। इंतखाबात से एक रात कबल यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे की वीडियो सामने आती है जिसमें वो अरकान असम्बली को वोट ज़ाया करने के ऊपर उकसा रहे हैं, उसका तरीकाकार बता रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा कर रहे हैं, आइन आपको इख्तियार देता है कि आपने करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करना है। करप्ट प्रैक्टिसेस का मतलब कि आपने पैसे में ज़मीरों के सौदागरों को इलेक्शन में पैसा चलने को रोकना है। मेरी इलेक्शन कमीशन से इस्तदार है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जिन्होंने ये इलेक्शन खरीदा, इलेक्शन से पहले ही खुल के सामने आ गया कि इस इलेक्शन में रिगिंग हो रही है, इस इलेक्शन में फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है, इस इलेक्शन में करप्शन हो रही है, तो उस सारे मामले को आप बराए मेहरबानी देखें। हमने ये पिटीशन फाइल की है, इसके अंदर दीगर कानूनी नुकात दर्ज हैं। हमने उनसे इस्तदा की है कि जब तक ये इलेक्शन पिटीशन का फैसला नहीं होता और जो कमेटी आपने बनाई है उसकी तहकीक मुकम्मल नहीं होती, आप यूसुफ रजा गिलानी की नोटिफिकेशन इशू ना करें और साथ साथ उनकी साहबजादे अली हैदर गिलानी जो पंजाब असेंबली के मेंबर हैं उनको भी आप पंजाब असेंबली की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई करें। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत फोरम के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि भारतीय हुकूमत को यह हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि जो इक़दामात मकबूजा इलाके में कर रही है इनसे ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं हो सकते और जल्द या बदेर इससे मसला कश्मीर हल करना पड़ेगा। मीरवाइज उमर फारूक ने जो गुज़िश्ता 19 माह से मुसलसल घर में नजरबंद हैं, श्रीनगर में BBC उर्दू सर्विस को ऑनलाइन इंटरव्यू में अफसोस जाहिर किया कि रियासती अवाम के तमाम इंसानी और मजहबी हुकूक ताकत के बल पर सल्ब कर लिए गए हैं। 19 माह से लगातार हमें अपने घर पे महसूर कर दिया गया है और बदकिस्मती ये है कि जिस तरह से आवाम से हमें मिलने से रोका जा रहा है, हमारा
जो एक राब्ता है, रिश्ता है अवाम के साथ, उसको बिल्कुल मजबूत कर दिया गया है। 82 जुमा हो गए हैं, मुझे जामे मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। न सिर्फ हमारे जो सिविल राइट्स हैं वो ताकत के बल पे सल्ब कर लिए गए हैं। मेरे बाकी साथी जेलों में हैं, आधे तिहाड़ में हैं, आधे मुख्तलिफ जेलों में, अकूबत खानों में हैं। ये लोगों के जज्बात को दबाया तो नहीं जा सकता। लोगों के जो एहसास हैं उनको ताकत के बल पे या घरों में बंद करके हमारा मौकफ जो है, जो कि एक उसूली मौकफ है और जो कि जिसकी पूरी दुनिया आज ये तायद कर रही है कि हर कोई कह रहा है, आप चीन से लेके अमेरिका की बात करें, बरतानिया की बात करें, हर कोई ये कह रहा है कि भाई बातचीत होनी चाहिए, मसला हल होना चाहिए। तो हमें ये बात कहने से क्यों रोका जा रहा है? हुकूमत हिंदुस्तान को ये समझना लेना चाहिए कि तब्दीलियां करने से, जो तब्दीलियां उन्होंने की हैं उससे हकायक तब्दील नहीं होंगे। रियलिटीज, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो चेंज नहीं होगी। आज नहीं तो कल, देर सवेर उन्हें इस मसले को हल करना है। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद खान सोबरी मोहम्मद यूसुफ नकाश ने अपने बयानात में भारतीय फोर्सेज की तरफ से गुज़श्ता रोज जामे मस्जिद श्रीनगर के बाहर पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत की वहशियाना इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की। कश्मीर एडिटर्स गिल्ड और कश्मीर प्रेस क्लब ने अपने बयानात में पुलिस की तरफ से श्रीनगर में सहाफ़ियों पर तशद्दुद की मजम्मत की। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ियती इजलास से अपने खिताब में पीपल्स लीग के रहनुमा मौलवी आमिर अहमद ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन तरक्की मसला कश्मीर के हल के साथ मुंसलिक है। भारतीय फौजियों ने शुपैया के इलाके में महासिर और तलाशी की कार्रवाई शुरू की और शुपैया बिजबहाड़ा सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस ने जिला रियासी के इलाके से एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। बदनाम जमाना तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर और उसके रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकाती अमल शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब भारतीय फौज तहरीक आज़ादी को ताकत के जरिए दबाने में नाकामी के बाद कश्मीरी नौजवानों को जदोजहद आज़ादी से दूर करने के लिए नया हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। KMS की एक तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी की फैशिस्ट हुकूमत, जिसने आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर की हकीकी सूरत हाल से बेखबर रखने के लिए इलाके में मवासलाती नाकाबंदी कर दी थी, भारतीय फौज की जेर निगरानी बारामूला के इलाके सोपुर में प्रोपेगेंडे के लिए FM रेडियो चैनल शुरू कर दिया है ताकि रियासती अवाम को गुमराह किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इक़दाम से यह जाहिर होता है कि भारतीय फौज को कश्मीर के लोगों की तरफ से शदीद मज़ाहमत का सामना है। भारतीय किसानों ने एहतजाजी तहरीक के 100 दिन मुकम्मल होने पर नई दिल्ली में एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया। मुजाहिरीन के इस इक़दाम से दारुल हुकूमत को मुल्क के बाकी हिस्सों से राब्ता कट गया और धरने के दोनों तरफ मीलों लंबी ट्रैफिक जैम हो गई। किसानों ने 5 घंटे तक धरना दिया, लेकिन ट्रैफिक बहाल होने में मजीद कई घंटे लग गए। किसानों ने ऐलान किया है कि अब वो पीर 8 मार्च को खवातीन के आलमी दिन के मौके पर पूरे भारत में किसानों की खवातीन तहरीक चलाएंगी। भारतीय इंतहा पसंद पाकिस्तानी शहरों के नामों से भी सीखपा होने लगे। भारत भर में मशहूर कराची बेकरी का मालिक कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गया। मुंबई में वाक़ भारत की सबसे पुरानी और मशहूर तरीन कराची बेकरी पर इंतहा पसंदों की जानिब से चंद माह कबल हमला किया गया था और आखिरकार शदीद एहतजाज के बाद उसे बंद कर दिया गया है। इस बेकरी को सिर्फ इसलिए हमले का निशाना बनाया गया क्योंकि इसका नाम कराची के नाम पर है। हिंदू कौम परस्त मकामी जमात महाराष्ट्र नूर निर्माण सेना कराची बेकरी को बंद करना अपना कारनामा करार दे रही है। मुंबई के मुतादिद ट्विटर सार्फी ने कराची बेकरी के बंद होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये मुंबई शहर का नुकसान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 1714 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 38 अफराद जान की बात से हार गए हैं। मुल्क में कोरोना से जान बक होने वालों की तादाद बढ़कर 13,166 हो गई है। मुतासरा अफराद में से 5,58,210 सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 11,68,20,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 26,000 के करीब लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं। इस वक्त 9,24,00,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। हुकूमत के जुर्रतमंदाना फैसले के पेश नजर कारोबारी हफ्ते के दौरान रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम रही। इसी की तफसील बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत खरीद और कीमत फरोख्त में बतदरीज कमी रही और कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन इंटरबैंक में डॉलर की कीमत खरीद 156 रुपए 75 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 156 रुपए 9 पैसे रही। अब तक मुल्क में रोशन डिजिटल अकाउंट्स में 97 ममालिक के 92,500 अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान तेजी का रुझान भी देखा गया और 100 इंडेक्स में बेहतरी नजर आई। इमरान खान के बनाए हुए रोशन डिजिटल अकाउंट से अरबों डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं और आएंगे। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनकी जबरदस्त सेल्स में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के करंट अकाउंट मुस्तकिल तकरीबन पॉजिटिव रहे हैं
और इनफ्लोज इस साल में ज़्यादा रहे हैं आउटफ्लोज के मुकाबले में, खासतौर पे फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से, और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी बेहतर थोड़ी हुई हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन प्रॉफिट टेकिंग के बायस इंडेक्स में कमी रही, ताहम मार्केट का तिजारती हजम 40 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा और इसी रुझान को स्टॉक एक्सचेंज ने बरकरार रखा। दूसरे दिन इंडेक्स में 370 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। तीसरे रोज 196 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जबकि चौथे दिन प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी रहा, जबकि कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन इंडेक्स में 558 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कोलंबो में श्रीलंका के सेक्रेटरी दिफा और कौमी सलामती के वज़ीर ममलिकत रिटायर्ड जनरल कमाल गुनारत्ने से मुलाकात की। पाक फ़ज़ाइया के तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी सलामती के श्रीलंकन वज़ीर दिफा ने कहा कि दोनों मुल्क इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर मुश्तरका नुक्ता नज़र रखते हैं। उन्होंने श्रीलंकन फ़ज़ाइया की 70वीं सालगिरह में शिरकत पर पाक फ़ज़ाइया के सरबराह से इज़हार तशक्कुर किया। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुस्तार ने इस्लामाबाद में अरकान असेंबली से मुलाकात की, जिसमें मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पैसे की सियासत और करप्ट सियासतदानों को बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि करप्ट माफिया का कोई मुस्तकबिल नहीं। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हम सब वज़ीर आज़म की क़यादत में मुत्तहिद हैं। मुआवज़ ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस हाशी कावान ने कहा कि खिलाड़ी के एक बाउंसर से सारी पीटीएम ढेर हो चुकी। अपोजिशन अरकान के चेहरों पर मायूसी और नाउमीदी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि काशी शेर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस तरह वजीर आजम ने भारी मार्जिन से पार्लियामेंट के अंदर इस मैच को जीत के ये ट्रॉफी पीटीआई के वर्कर्स को थमाई है, इसने 92 के वर्ल्ड कप की जैसी खुशी जो है इस कौम को दी है। पूरी कौम जो है इन चोरों की डाकाजनी, चोर दरवाजे से सेनेट की सीट पे विराजमान होने का जो वावेला था उससे सहमी हुई थी। पूरी कौम ने देख लिया कि इमरान खान ने इन चोर दरवाजों से आने वालों का हमेशा के लिए रास्ता बंद करने के लिए टेक्नोलॉजी को मुतारफ करने का अज़म दुहराया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असेंबली से एतमाद का वोट लेने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने क्वेटा में रैली निकाली, जो मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में अहम संग मील है। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कचलाग जुडिशल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया। 15 करोड़ 70 लाख की लागत से कचलाग जुडिशल कॉम्प्लेक्स 2 साल की मुद्दत में तामीर होगा। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सूबे के अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के मिशन पर अमल पैरा है और कचलाग जुडिशल कॉम्प्लेक्स का क़याम इसकी कड़ी है। कबायली अजला के इंतजाम के बाद इलाके में समाजी और माशी तरक्की के लिए इक़दाम जारी हैं। अवाम की सहूलत के लिए जिला खैबर की सिविल अदालतें पेशावर से मुंतकिल कर दी गई हैं। इसकी तफसील बताएंगे लड्डी कोतल से हमारे नुमाइंदे हजरत उमर शिनवारी। इंतजाम के बाद जब दमशुदा अजला में अदालती निज़ाम का कयाम अमल में लाया गया तो जिले खैबर में कचेरियों और जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अदम दस्तियाबी की वजह से सिविल अदालतें पेशावर के इलाके हैदराबाद में कायम की गई और लोगों को इंतजाम के समरात समेटने और इंसाफ के हुसूल के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता था। ताहम अब सिविल अदालतों को मुतल्लिका इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया है। सिविल अदालतों की मुंतकिली से अवाम को इंसाफ के उसूल में आसानी होगी। उसमें थोड़ा सा मुश्किल ये था कि ये एहताबाद में हमारा अदालत था, उधर आने जाने में ये गरीब लोगों को बहुत मुश्किल था, तकलीफ था और टाइम भी ज़ाया हो रहा था। तो इस वजह से हमारा मुशानों का, हमारे इलाके के लोगों का ये मुतालिबा था कि ये सिस्टम जो है ना यहाँ पर लंडीकोट तहसील को शिफ्ट करे। सिविल अदालत दीवानी मुकदमात निपटाने के साथ साथ मजिस्ट्रेट के इख्तियारात इस्तेमाल करने की भी मजाज है। यहाँ पे सिविल मुकदमे जितने भी होंगे, सिविल मतलब दीवानी मुकदमे, जो सिविल ज़मीनी तनाज़ात वगैरह जो भी है ये सारे यहाँ पे होंगे और इसके साथ ही मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी इसको मिले। जिला खैबर के अवाम ने अदालती निज़ाम की तौसीफ को खुशाइंद करार देती हुई तवक्को ज़ाहिर की कि इससे साइलिन को बरवक्त इंसाफ मिलने में मदद मिलेगी। हजरत उमर शिनवारी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लंडी कोतल। इस्लामाबाद में 3 रोजा सियाहती और फैमिली मेला दूसरे रोज भी जारी रहा। टूरिज्म फेस्टिवल में शहरी पैराग्लाइडिंग से लुत्फ अंदोज कर मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया।
तफसील अमजद अली से। मुल्क में सियाहत को फरोग देने के लिए वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर वफाकी दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। फेस्टिवल का एहतमाम स्पोर्ट्स और सियाहती शोबे ने मिलकर किया है। फेस्टिवल के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरी पैराग्लाइडिंग से भी लुत्फानंदोज हुए। हुकूमत मुल्क में सियाहत के फरोग के लिए आसानियां पैदा कर रही है ताकि मुल्क के मुस्बत तशख्खुस को उजागर किया जा सके और मईशत में सियाहत का हिस्सा भी बढ़ाया जाए। 3 रोजा मेले में बच्चों और खवातीन की दिलचस्पी के लिए भी इवेंट्स का एहतमाम किया गया है। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। स्टेज के बेताज बादशाह कॉमेडी किंग अमान अल्लाह को मद्दाहों से बिछड़े हुए 1 साल बीत गया। उनकी फनी खिदमात के हवाले से देखते हैं लाहौर से नवीद हयात की ये रिपोर्ट। सर ये होता है कि हम थिएटर करते हैं तो थिएटर तो कमिटेड होता है ना, हम पब्लिक के साथ कमिटेड होते हैं। बीमार हो, कुछ भी हो, हालात घर के सही हो, अच्छे हो, खुश हो ना हो, ये जो बिजनेसमैन लोग हैं ये तो टेलीफोन पे नौकर को बोल देते हैं ना, हेलो भाई मैं नहीं आ सकता, भाई मैं नहीं आ सकता, हेलो आई एम गोइंग टू मरी है हमें जाना पड़ता है। मजाक की दुनिया के बेताज बादशाह अमानुल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपने फन के हवाले से मुनफरिद पहचान रखते हैं। 3 दहाइयों से जायद अपने फनी कैरियर में अमानुल्लाह ने सैकड़ों वन मैन शो, हजारों स्टेज ड्रामों में कहकहों और मुस्कुराहटों की बरसात की। अगर ये कहा जाए कि मजाक का दूसरा नाम अमानुल्लाह है तो बेजान ना होगा। उनके चेहरे के तासुरात और लबो लहजे से शायकीन के चेहरों पर खुशियां आ जाती, बर्जस्तगी और मौके की मुनासबत से जुमला अंदाजी उनका हासा थी। गरीबों के बच्चे टीवी में ना मीरा करा जो वीडियो में गेमा खेल रही इन्होंने को टीवी होंगे नहीं, रात को चन्न नाल खेडते रहते रात को निके नु कहें और मैं चन्न उथे लैके जावां वेखी उन्हें। अमानुल्लाह ने मशहूर ड्रामों के साथ साथ फिल्मों के अलावा मुल्की और गैर मुल्की टीवी शो में भी अपने फन का मुजाहरा किया। उनकी मकबूल फिल्मों में 1 2 का 1 और नामालूम अफराद शामिल हैं। अमानुल्लाह को फनी खिदमात के एतराफ में सदारती अवार्ड समेत दीगर कई एजाज़ात से भी नवाजा गया। अमानुल्लाह की वफात से मजाक का एक रोशन बाब खत्म हो गया। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -6, काला -2, अस्तोर और गोपस में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं मोहम्मद अनीस। जापान ने पाकिस्तान को डेविस कप में 4-0 से हराकर 2022 के क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में खेले गए वर्ल्ड ग्रुप 1 टाई के डबल्स मुकाबले में जापान के शिंतारो मोचिजोकी और शो शिमाबोकोर ने पाकिस्तान के सामुल हक कुरैशी और अकील खान की जोड़ी को मात दी। जापान ने 4-6, 6-4 और 6-2 से कामयाबी हासिल कर ली। रिवर्स सिंगल्स में भी जापान के यूता शमीजो ने मुकाबला जीतकर अपने मुल्क को 4-0 से फतह दिलाई। टाई में नाकामी के बाद पाकिस्तान अब वर्ल्ड ग्रुप 1 का प्ले ऑफ मरहला खेलेगा। क्रोएशिया के बोर्ना चॉरिच, हंगरी के मार्टिन फिक्सोविक्स, यूनान के स्टेफानोस सिट्सिपास और रूस के आंद्रे रुब्लेव रॉटरडैम टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। नेदरलैंड्स में खेले गए क्वार्टर फाइनल में बोर्ना चॉरिच ने जापान के की निशिकोरी को शिकस्त दी। चॉरिच ने निशिकोरी को 7-6 और 7-6 से मात दी। हंगरी के मार्टिन फिक्सोविक्स ने अमेरिका के टॉमी पॉल को हराकर लास्ट 4 के लिए क्वालिफाई किया। फिक्सोविक्स ने पॉल को 6-4, 6-3 से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। यूनान के स्टेफानोस सिट्सिपास ने रूस के कैरन खचनोव को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 सेट्स में जेब किया। सिट्सिपास ने खचनोव के खिलाफ 4-6, 6-3 और 7-5 से कामयाबी समेटते हुए सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया। एक और क्वार्टर फाइनल में रूस के आंद्रे रुब्लेव ने फ्रांस के जेरेमी चार्डी को 3 सेट्स के बाद चलता किया। रुब्लेव ने चार्डी को 7-6, 6-7 और 6-4 से शिकस्त दी।
कराची में शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के मुलतवी होने का अफसोस है। कोरोना के बायस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मजबूरी में PSL मुलतवी किया। उन्होंने कहा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले 4 मैचेस में नाकामी के बाद कमबैक किया और जब भी टूर्नामेंट दोबारा शुरू हुआ तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम अपनी जीत का सिलसिला बढ़ाएगी। श्रीलंका ने दूसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 43 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। कॉलेज में खेले गए मैच में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए। धनुष्का गुनाथिलाका 56 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पाथम मुसांका ने 37, एशन मंदारा ने 21 रन स्कोर किए। वेस्टइंडीज की जानिब से डवीन ब्रावो ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताकुब में मेजबान टीम 18.4 ओवर में 117 रन पर ढेर हो गई। उबैद मैककॉय ने 23 रन बनाए। श्रीलंका के डिसिल्वा और संदाकन ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। तीसरा और आखिरी मैच 8 मार्च को खेला जाएगा। भारत ने चौथे क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 1 इनिंग्स और 25 रन से हराकर ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अहमदाबाद में खेले गए मैच के चौथे रोज इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 135 रन बनाकर आउट हो गई। डॉन लॉरेंस ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। भारत की तरफ से अश्विन और अक्षर पटेल ने 5-5 विकेटें हासिल की। 4 मैचेस की सीरीज मेजबान टीम ने 3-1 से जीत ली। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 18 जून को लंदन में खेला जाएगा। कतर में वर्ल्ड टेबल टेनिस इवेंट में फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गया है। खवातीन के टाइटल के लिए जापान की मीमा ईतो और हिना हियाता मद्दे मुकाबिल होंगी। दोहा में खेले गए पहले सेमीफाइनल में जापान की मीमा ईतो ने सिंगापुर की मैंग्यू यू को स्टेट गेम्स में हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में भी जापानी खिलाड़ी फाते रही। हिना हियाता ने हमवतन मैव किहारा को स्टेट गेम्स के बाद शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। मर्दों के फाइनल में जर्मनी के डेमेत्रिच का सामना ताइवान के जिन जॉलिन से होगा। सेमीफाइनल में जर्मनी के डेमेत्रिच ने आलमी नंबर 5 जापान के तोमोकाजो हारिमोतो को 2 के मुकाबले में 4 गेम से मार दी। दूसरे सेमीफाइनल में ताइवान के जिन जॉलिन ने फ्रांस के सिमोन गोजे को 1 के मुकाबले में 4 गेम से शिकस्त दे दी। बरतानवी एथलीट मोहम्मद फराह ने जबूती में होने वाली हाफ मैराथन अपने नाम कर ली है। 37 साला फराह ने साल 2021 का आगाज फतह के साथ किया। उन्होंने मुकर्रर फासला 63 मिनट और 7 सेकंड्स में तय किया। बेल्जियम के बशीर आब्दी 4 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। फराह रवां साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स में 10,000 मीटर दौड़ में अपने एजाज का दिफा करेंगे। खेलों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं इंडस्ट्री पर। बहुत शुक्रिया अनीस। और इसी के साथ ही बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। सदफ अली खान और रिजवान अली अहमद को हमारे न्यूज टीम के हमरा इजाजत दीजिए। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि जनूबी एशिया के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का क़याम मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पायदार हल से मशरूत है। इस मसले की राह में भारतीय हठधर्मी और तोसी पसंदाना सोच वाहिद रुकावट है। भारतीय जिद, अना और रऊनत के बायस 1947 से 6 लाख जबकि गुज़श्ता 3 दहाइयों में 1 लाख कश्मीरियों की कीमती जिंदगियों का इतलाफ हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 जंगें हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी की क़यादत में RSS हुकूमत के क़याम के बाद से न सिर्फ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मजालिम में इजाफा हुआ है बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी भी होशरुबा हद तक बढ़ गई है। 27 फरवरी 2019 को जब ताकत के नशे में चूर हिंदुत्व के अलंबरदारों ने पाकिस्तान पर जारहियत की तो पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया। इस इबरतनाक शिकस्त से भारतीय हुक्मरानों को भी ये एहसास हो गया कि पाकिस्तान को गीदड़ भभकियों से मरूब नहीं किया जा सकता। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया जंगबंदी मुआहिदा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है।
अगरचे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा एक अहसन इकदाम है जिस पर कश्मीरी अवाम ने खुशी का इजहार किया है, ताहम लोगों का कहना है कि तनाज़ा कश्मीर तमाम फसाद की जड़ है और इस मसले को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किए बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं है। यहाँ का कश्मीरी हो चाहे उस पार का कश्मीरी हो, वो दोनों जो चाहते हैं एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हमें, क्योंकि हम लोगों को जो है हम ही लोग पीछे जा रहे हैं। तो ये बड़ी बात नहीं है, ये फिर 6 महीने के बाद ये फिर सीज फायर खत्म हो जाएगा, इनका जंग वंग नहीं होगा, गोलियां नहीं बरसेंगी, गोले नहीं बरसेंगे, तो हम बड़े खुश हैं। यहाँ पर तमाम बलकोट गांव और जितने भी सरहदी कस्बा उड़ी के गांव हैं, इनमें एक ईद का समा था। जब हमने ये खबर सुनी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर माहिदे पे दस्तखत हुए, शरीर से बहुत बड़ा नुकसान होता है। यहाँ के लोगों को घर बार छोड़ना पड़ता है, कोई हालत नहीं रहती है, उसमें लाइफ जो है 100% रिस्क में चली जाती है, कोई यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए हम इसका खैर मकदम करते हैं ताकि लोगों की लाइफ सबसे कीमती है वो सेव हो सके। हम सियासत से उम्मीद करेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों से उम्मीद करेंगे, जो पहल की है इस पहल का हम ख्याल मकदम करते हैं, लोग इससे खुश हैं और उम्मीद करते हैं बाकी मामला जो है वो भी हल करेंगे। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हुर्रियत कायदीन का कहना है कि जब तक कश्मीरी अवाम को हक खुद इरादियत नहीं दिया जाता, जिसका वादा अक़वाम आलम ने कश्मीरियों के साथ कर रखा है, तब तक पायदार अमन एक ख्वाब ही रहेगा। जब तक मसले कश्मीर पर कोई पेशरफ्त न हो, उस वक्त तक हमें नहीं लगता कि ये सीज फायर लाइन किसी बड़ी पेशरफ्त का पेशखीमा हो सकती। कश्मीर में एक बड़ी आबादी है जो इस एहसास का शिकार है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। जब तक उन एहसासात को एड्रेस करने की राह में कोई पेशरफ्त न करे, कोई हकीकी मानों में सीज फायर नहीं बन सकती और कुछ वक्त के बाद इसका खात्मा अक्सर होता रहा है और होता रहेगा। कश्मीरी अवाम का कहना है कि मसला कश्मीर के आबरूमंदाना हल के लिए सहफरीकी बातचीत जरूरी है और बातचीत का माहौल बनाने के लिए भारत को चाहिए कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अपने मजालिम बंद करे, सियासी कैदियों को रिहा करे और कश्मीरियों के हुकूक बहाल करे। जो हमारे मुसीबतें और मुसीबतें हमने देखी हैं, मौतें देखी हैं हमारे लोगों की, घर उड़ते देखे, बच्चे और औरतें और मर्द मरते देखे, वही हाल पार भी होगा और फौजी जवान इधर भी मरे वहाँ भी मरे। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि ये एक मामला तय हो रहा है, प्यार से हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों में अमन आए। मुझे ये याद है कि जब वाजपेयी जी आए थे कश्मीर और उन्होंने कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी के साथ अगर हम दोस्ती में रहेंगे, वो हमारे साथ दोस्ती में रहेंगे, दोनों तरक्की करेंगे, और अगर दोस्ती में नहीं रहे तो दोनों की तरक्की सुस्त हो जाए। मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के हालात, यहाँ के लोगों के एहसास, चाहे वो हिंदुस्तान के वजीर आजम हो चाहे पाकिस्तान के वजीर आजम हो, इनके लिए जम्मू कश्मीर के मसले पे बातचीत करने के अलावा और कोई चारा नहीं। जिस तरह वाजपेयी जी ने एक बातचीत की शुरुआत की थी मुशर्रफ साहब के साथ, इस वक्त इमरान खान साहब से बात होनी चाहिए और एक अच्छा खुशगवार माहौल पैदा हो जाए ताकि जम्मू कश्मीर का जीना मसला 70 साल से लग रहा है उसको हल किया जाए। पाकिस्तान हमेशा से ही तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल का ख्वाह रहा है, लेकिन भारत मुख्तलिफ हीलों बहानों से फरार का रास्ता इख्तियार कर रहा है। ताहम अब वक्त आ गया है कि भारत इस बात का एहसास करे कि खित्ते में कशीदगी के खात्मे और अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है।